Okay. Okay. So, good morning, everyone. Uh, already, Good morning, sir. Good morning, sir. good Good morning. morning, sir. Good morning, everyone. So, I guess most of you have already attended my previous lecture, and those who are new, we have posted the video link of our lecture. So, I think, at least I think, maybe you all have gone through that. And let's see, start करते हैं, ठीक है? Then थोड़ा सा क्विक रिवाइज करते हैं कि लास्ट लेक्चर में क्या देखा, और उसके बाद इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन बिटवीन, ठीक है? सो लेट्स सी. So in last lecture we studied the topic unit dimension, unit and dimension and errors. So in that we discussed the different type of quantities like the physical quantities and fundamental quantities, about the fundamental quantities. Then we discussed what are the those fundamental quantities, and we discussed 7 fundamental quantities there. So the first one was mass, then length, then time, then temperature and current. We already told like these will be the most important one. Apart from these, two more are there, but we need to remember the dimension of these only, at least these only we must remember the dimensions. So for mass m, length l and time t. So in that we discussed the different criteria of writing the dimensions. So in that criteria I'll brief a little bit, like for the force, I always tell just remember for the force. So for the force, if I see the formula of force, so in formula of force it is force is equal to mass into acceleration. So if I see, so F is equal to, I have here, F is equal to mass over m into a, mass into acceleration. So mass into acceleration, mass will be kg, and acceleration, the unit of acceleration will be kg per meter square. So by that, kg is our m and meter is our l, and upon second square is our meter per second square. So the unit dimension will be mlt minus 2. Okay, so this is our particular dimension. So like that we discussed different aspect of the dimension, how to write from a value, like from this formula, how to write the dimension of any particular value. So I given an example to write the value of g. Then with different formula we discussed different type of dimensions. Then we came to one special concept of dimension. It was a special one जिसमें हमने क्या डिस्कस किया कि different terms in a equation. Suppose this is our particular equation. In a equation there are different terms which are separated by addition, negative or equal to, which means that time I gave an example. Suppose 2 meter can be added with meter only, like 5 meter. You cannot add 2 meter with 2 kg. So it is simple, if two things are added then their result will also be in the same unit. So the answer will be 7 meter. Then we discussed with the different example, various type of example, how to find these dimension. जिन लोगों ने previous lectures नहीं देखे, it's okay, कोई problem नहीं है, वो एक बार previous lecture review कर ले, और कुछ भी doubt होता है तो हमें message कर सकते हैं. फिर हमने डिस्कस किया था various type of equations, बहुत सारी equations से बहुत सारे example डिस्कस किए थे. So I'm just scrolling by. Then at last हम डिस्कस कर रहे थे हाउ टू स्टैब्लिश अ रिलेशन, और मैं फिर एक बार एक एग्जांपल के थ्रू उसको क्लियर करता हूं. सपोज हाउ टू स्टैब्लिश अ इक्वेशन. क्वेश्चन गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास. नंबर 1 इज मास एंड नंबर 2 वेलोसिटी.
काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी। सो व्हाट वी सी कि हमने एज्यूम कर लिया, लेट्स से देयर इज अ पावर ऑफ ए एंड बी इन एम एंड वाई। तो हमने ये चीज एक एज्यूम की है, ये ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, ये हमने एज्यूम कर लिया है कि यार ये ऐसा होता है, ठीक है। सो इन दैट सिनेरियो हमें करना क्या है, हमें ये जो पार्ट है इसकी भी डायमेंशन लिखनी है और ये जो पावर्स है इनकी भी डायमेंशन लिखनी है। तो मैंने समझाया था कि काइनेटिक एनर्जी का आप किसी भी एनर्जी से डायमेंशन उसका लिख सकते हो। किसी भी एनर्जी से डायमेंशन लिखने का मतलब आप वर्क डन से लिख सकते हो, किसी भी चीज से लिख सकते हो। तो एनर्जी की डायमेंशन आपने याद रखी कितनी है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू है और एम एल टू टी माइनस टू। अब देखिए मास की डायमेंशन आपने रख दी यहाँ, फिर आपने v स्पीड की सॉरी हाँ आपने स्पीड की डायमेंशन यहाँ पे रख दी है, दोनों पे पावर लगा दी है। अब मैंने बताया कि सपोज 2x लिखा हुआ है और उसकी पावर 3 है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ये पावर दोनों चीजों में काम करेगी, दैट मीन्स 2 का भी क्यूब विच इज 8, सो 2 का भी क्यूब विच इज 8 एंड x का भी क्यूब रहेगा विच इज x क्यूब। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ये किस तरीके से काम करता है पावर अगर हम किसी चीज के बाहर लगाते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने ये एग्जांपल देखा था और आफ्टर कंपेयरिंग कंपेयर m a एंड l with l and t with t, a और b की वैल्यूज आ जाती हैं, देन वी गेट द फाइनल वैल्यू। Okay, so last class we discussed this formula and most of the student gave a good answer. So we'll review this formula and we'll come to an example again. Our next one. So in this question, notice everyone, given क्या है हमें situation in a circular motion ज़्यादा matter नहीं करता है, but the important factor is centripetal force, means some force depends upon three parameters: mass, speed and radius. तो अब हमने करना सॉल्व कैसे करना है, हमें सबसे पहले लिखना है लेट्स से सेंट्रीपिटल फोर्स C डिपेंड्स अपॉन मास, स्पीड एंड रेडियस। हमें प्रॉब्लम क्या है, हमें पता क्या है, हमें ये नहीं पता कि फॉर्मूले में पावर्स क्या है। मतलब अगर हम C का फॉर्मूला देखें तो कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है m r अपॉन v क्यूब, कुछ भी रैंडम सा हो सकता है, एनीथिंग रैंडम। तो इसका मतलब क्या सिचुएशन होगा, हमें ऐसा करना चाहिए कि देखना है, सॉल्व करना है कि किस तरीके से हम पावर्स निकाल सकते हैं। तो पावर निकालते हैं चले। तो m पे पावर आपने एज्यूम किया a, फिर v पे पावर एज्यूम किया आपने b और r पे पावर एज्यूम किया c। अब सबकी डायमेंशन लिखनी है। तो पहले फोर्स की डायमेंशन, मैंने बार बार बताया फोर्स की डायमेंशन याद रख लो, ठीक है। तो फोर्स की डायमेंशन हो गई एम एल टी माइनस टू। अच्छा, फोर्स की डायमेंशन हो गई। इसके बाद बात करते हैं लेट्स से मास की डायमेंशन। तो मास तो m है, दैट मीन्स m टू द पावर a है। उसके बाद बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड की डायमेंशन है एल पी माइनस वन, बट इसके पावर तो b है ना, मतलब b का पावर l में भी होगा और t में भी होगा। सो b का पावर l में भी है, सब लोग यहाँ पे ध्यान देते जाए, और t का पावर b में भी है। तो ये t टू द पावर माइनस b बन गया। फिर इसके बाद रेडियस, रेडियस मतलब लेंथ, लेंथ मतलब l, l टू द पावर c। तो इससे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई होती हैं चीजें तो पावर एड अप होती है। दैट मीन्स m तो m है, बट l यहाँ पर l टू द पावर b है और l टू द पावर c है, दैट मीन्स l टू द पावर b प्लस c आएगा। t फिक्स है। अब करना क्या होता है, जस्ट कंपेयर करना होता है, दैट कंपेयर m। तो यहाँ पे m टू द पावर कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे m टू द पावर 1 है, दैट मीन्स a की वैल्यू कितनी हो गई, 1। l पे बात करें तो l टू द पावर b प्लस c है इस तरफ, बट इधर 1 है, दैट मीन्स b प्लस c इज 1। नाउ कंपेयर दिस t टू द पावर, इट इज माइनस b, और यहाँ पे t टू द पावर माइनस टू, दैट मीन्स माइनस टू और b को कंपेयर किया, सो b की वैल्यू आ गई 2। अब अगर हमने b की वैल्यू यहाँ पे रख दी तो हमारी b की वैल्यू 2 रखेंगे, c इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 2 उस तरफ जाएगा, सो माइनस टू बनेगा एंड c की वैल्यू आएगी माइनस 1। सो इसका मतलब आवर पावर्स आर m टू द पावर 1, v to the power 2, r to the power minus 1, that means m to the power 1, v to the power 2 and r to the power minus 1। और मैंने बताया कि माइनस को हम अपॉन में लिख सकते हैं, माइनस टू द पावर, इसलिए हमने इसमें अपॉन में लिखा हुआ है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया हुआ था लास्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। अब हम आज एक नया एग्जांपल देते हैं जिसमें से आपको वैल्यू फाइंड करनी थी। कुछ स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी वो एग्जांपल किया हुआ था, दैट्स गुड, बट बाकी लोग जिन्होंने नहीं किया वो एग्जांपल ये सॉल्व करेंगे। तो आज का एग्जांपल पढ़ लेते हैं। देखिए,
तो जिस तरीके से मैंने बताया वही आपको करना है। गिवन अ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, तो आपको बहुत सारी चीजों पे ध्यान नहीं देना, ये ध्यान देना इट इज अ टाइम डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट मीन्स हमने क्या बताया, दिस आवर टी इट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, लेंथ एंड ग्रेविटी। अब दोनों पे पावर हमने ज्यूम कर ली, सो लेंथ टू द पावर ए एंड ग्रेविटी टू द पावर बी। अब दोनों साइड की डायमेंशन लिखें और कंपेयर कर दें। Done. So try and give the final values. What will be the values of A and compare quickly everyone. Answer in the chat box. Don't answer publicly. सबको सॉल्व करने दें एंड जिसका आंसर आ जाए आंसर इन द चैट बॉक्स. Okay, I think I given this example in the last class. That's why most of the students already solved it. That's why I'm getting the questions so quickly. Okay, very good. Correct answer. Correct answer. Very good. Arjun, correct answer. Arya, correct answer. Yashraj, correct answer. Okay, very good. Dhruv, correct answer. Samarjeet, correct answer. Yashraj, Vishwajit, Adit, Ayush. Okay. बहुत सारे स्टूडेंट्स के करेक्ट आंसर. गुड. चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट के आंसर सही हैं. आज हम डिस्कस कर लेते हैं फिर चीज़ों को. देखिए, मैं फिर से एक बार सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ. टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन आपको जस्ट पावर एज्यूम करनी है. सो टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होगी, ऑलरेडी हमें पता है दैट इट इज अ टाइम विच मीन्स इट विल बी टी. देन L to the power A. L is our L to the power A. Acceleration due to gravity कितना होता है? ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स के करेक्ट आंसर है. मैं सबका नाम बार बार ले रहा हूँ. इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. डन. ओके, क्लियर. ठीक है. दोज हु आर रेजिंग हैंड, raise hand only if you have doubt, because if you'll raise hand I'll get a notification, so I'll call the name, then only you ask doubts. So let's see, L to the power A, so we considered L to the power A here. Then acceleration, the unit of acceleration is meter per second square. Yeah, Mrinmay, you raised hand. Have any doubts? Yeah. So the value of A is negative B, so I didn't get that. It's okay, you can get the value of negative, it doesn't matter. The value can be negative or positive. We'll discuss which sort of values coming here. We'll see. So let's see, I'm comparing the L and this LT minus 2 with power B. So I multiplied the power with L in this particular one and multiplied the power with T. Now we have 2L, so by multiplying we'll add up the power A plus B, and this is minus 2B. Then now we'll compare. Is there any M? No, there is no M, but there is L. L to the power here, यहाँ पे तो left side में तो L ही नहीं, which means the power is 0. But here it is A plus B. That means the A plus will be 0. Now compare the T. T to the power 1 is here, but here minus 2B. That means minus 2B will be compared with A. So B will get minus 1 by 2. And if we keep B here minus 1 by 2, we'll get the value of A as positive, plus A by 2. So in final particular one, we'll get the value something like this. L to the power half plus, because it is A, and G to the power minus half. So मैंने already बताया, if the power is negative, तो physics में हमेशा उसे denominator में रखते हैं, then power will become positive. So G to the power half क्या हो गया, positive हो गया है, और L to the power half तो already positive था.
तो हमने g को डिनोमिनेटर में लेके आए और पावर पॉजिटिव हो गई। अब ऑलरेडी मैंने बताया है पावर 1/2 मीन्स रूट, so suppose I have written x to the power 1/2, so it only means that it is written nothing but the root x. Done. So which means the both the powers are 1/2, which means L/2 to the power 1/2, and we can write it as root. So the final relation will be t is proportional to root L/g. और ये एक फॉर्मूला है जो हमने ऑलरेडी बताया है कि फाइनल फार्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी, बट मैंने ऑलरेडी बताया आप लोगों को वी कैन नॉट डिटरमाइन दिस 2 पाई means we cannot determine these parameters which are constant. We can only determine the quantities, not the constant values. So this was our particular part in which we discussed कि फॉर्मूला कैसे जनरेट करना है, आपको किस तरीके से आपको डील करना है उनको। चले तो नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ चलते हैं। किसी को कुछ डाउट है इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जो हमने अभी सॉल्व किया तो बता दे। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो इस टाइप के हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, आप लोग सब ट्राई करेंगे। ये एग्जांपल ट्राई करें एवरीवन। एग्जांपल सुने। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, तो वेव से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता, हमें टारगेट होता है फ्रीक्वेंसी, हमें ये टारगेट है फ्रीक्वेंसी। अच्छा, बहुत लोग को फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन नहीं पता होगी, तो फ्रीक्वेंसी अगर मैं बताऊं, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन देखें तो फ्रीक्वेंसी हमें पता है इट इज नथिंग बट पर सेकेंड थिंग, और इट इज 1/सेकेंड। हर्ट्ज जो यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का, उसका मतलब होता है 1/सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम। सो अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा मीनिंग होता है इट इज 1/टाइम। सो इसका मतलब इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हम लिख सकते हैं t⁻⁻1। सो नाउ सॉल्व। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग डिपेंड्स, इसे एप से लिख सकते हैं, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन, नाउ नोटिस टू थिंग्स, मास, लेंथ एंड टेंशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर मास तो पता है, लेंथ तो पता है, ये टेंशन क्या है, व्हाट इज अ टेंशन? तो याद रखना टेंशन अगर आपको चाहिए तो टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स। नाउ यू नो व्हाट टेंशन इज, टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स। तो आप देख सकते हैं। तो अभी सॉल्व करना स्टार्ट करें सब। सो इसका मतलब ये हुआ फ्रीक्वेंसी, दिस एफ स्मॉल एफ नोटेड हियर, दिस फ्रीक्वेंसी जिसका यूनिट हमने अभी क्या बताया, टाइम टू द पावर -1, तो ये इसकी डायमेंशन हो गई, दिस इज प्रोपोर्शनल टू मास, लेंथ एंड टेंशन इज नथिंग बट अ फोर्स, इज फोर्स। तो अब आपको सबकी डायमेंशन बतानी है, ए बी की वैल्यू मैं पहले से नोटिफाई करता हूँ, आपको एज्यूम करना है m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड f टू द पावर c, and now I need the value of a, b and c as per my notation। जो मैंने नोटेशन दिया उसके अकॉर्डिंग बताना है सबको। I need the values of a, b and c by comparing। ओके, आ रहा है करेक्ट आंसर।
वेरी गुड आर्या, करेक्ट आंसर। आदित्य, नॉट करेक्ट आंसर। Arya, write it a bit properly. The values of A, B, and C. I think yours is also not correct. ओके, करेक्ट है यार, बहुत अच्छा। विश्वराज, मृण्मयी, आयुष, वेरी गुड। कार्तिक, करेक्ट। ध्रुव, नाउ इट्स करेक्ट या। Pranay, it's not correct. Pranay, kindly reach your answer. Purva, it's correct. Varad, it's correct. Very good. I guess most of the students have given the answer, so it's good. So let's see. वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया है। चले हम देख लेते हैं, एक बार डिस्कस करते हैं। सब लोग फिर से नोटिस करेंगे कि यार ये जो फ्रीक्वेंसी था वो होता है टाइम टू द, मतलब 1/टाइम पीरियड, दैट मीन्स टाइम टू द इनवर्स। बट अगर हम टाइम टू द इनवर्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उस पे m है ही नहीं, m0 है, l0 है, t पे पावर -1 है। अब यहाँ पे देखते हैं मास टू द पावर a, लेंथ टू द पावर b, और फोर्स मैंने बताया mlt-2। याद रखिए, बेटर रहेगा, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये c और b की पावर हो गई, m टू द पावर a, b टू द, l टू द पावर b, और c टू द पावर ये सब में रहेगी। तो देखो m यहाँ पर भी है और m यहाँ पे भी है, विच मीन्स m टू द पावर a प्लस c हो गया। l यहाँ पर भी है b, और l टू द पावर c यहाँ पर भी है, दैट मीन्स l टू द पावर b प्लस c हो गया, और t जस्ट -2c था। अब हमें कंपेयर करना है, तो यार m और l ये सब तो जीरो है, सिर्फ t को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले t इंपॉर्टेंट है, सो t इज आवर -1। we'll compare this -1 with -2c and we'll get the c as 1/2। so ये करेक्ट आंसर है, c की वैल्यू 1/2। अब बात आते हैं m पे, तो m टू द पावर 0 है, बट here we have m to the power a plus b, which means a plus b is equal to 0। सॉरी, a plus c is m to the power, which means a c पता है तो a पता चल जाएगा, it is 1/2। तो इस तरीके से हम गेस कर सकते हैं कि वैल्यूज क्या रहेंगी a की और c की, इन सब चीजों की वैल्यूज। डन। देन बात करते हैं b प्लस सी। b 0 रहेगा बिकॉज l टू द पावर b प्लस सी है, c की वैल्यू रखेंगे तो b भी आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर था a की वैल्यू है -1/2, वेरी गुड। b की वैल्यू है -1/2 एंड c की वैल्यू है 1/2। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड। हमें चाहिए तो हम फाइनल फार्मूला भी बना सकते हैं। पावर जो नेगेटिव है उनको अपॉन में ले आ सकते हैं, जो पॉजिटिव है उनको ऊपर ही रखे रहने देंगे। नेगेटिव पावर को डिनोमिनेटर में ले आओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, और सब पे पावर 1/2, विच मीन्स फाइनल आंसर क्या होगा, रूट में होगा। तो ये हमने फाइनल आंसर अंडर रूट में दिया। ठीक है, तो यहां तक हमने डायमेंशंस के बहुत सारे यूज देखे हैं, डायमेंशंस के बारे में डिस्कस किया है। अभी डायमेंशन के बारे में एटलीस्ट आपको क्लियर रहेगा। फिर ये सिनेरियो ऑलरेडी मैंने फर्स्ट लेक्चर में कवर कर लिया था, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। दैट वी हैव सर्टेन यूनिट सिस्टम, कि अगर हमें कोई चीज सॉल्व करनी है तो हम किस तरीके से, किस यूनिट सिस्टम में उसे सॉल्व करेंगे। मतलब मैंने बताया था, सपोज फोर्स का यूनिट है, आपको ऑलरेडी क्लियर है कि यार फोर्स का यूनिट अगर लेट से मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो मैंने बताया कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि मास को ग्राम में ले लो और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ले लो, ये सही तरीका नहीं होगा। ठीक, हमने ये चीज डिस्कस की थी कि यार ये सही तरीका नहीं है, यूनिट मस्ट बी इन अ सिस्टम। सो द फर्स्ट सिस्टम इज एफपीएस सिस्टम, जो कि ब्रिटिश सिस्टम है,
और फॉरेन कंट्रीज में भी यूज होता है। एफ का मतलब है फुट, पी का मतलब पाउंड, टी का मतलब सेकेंड। तो इसका मतलब जो डायमेंशंस हैं उनके जो डिफरेंट यूनिट है वो हमने डिस्कस किया। इंडिया में मोस्टली फॉलो होता है एमकेएस, विच मीन्स एम मीन्स मीटर, के मीन्स किलोग्राम, टी मतलब सेकेंड। मतलब जब भी कभी मीटर सेकेंड जैसी यूनिट आएंगी तो मास का यूनिट क्या होना चाहिए, किलोग्राम। सो यहाँ पर ग्राम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए था, केजी। तो ये थोड़ा सा हमें इस चीज को माइंड में रखना है और उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोसीड करना है। फिर हमने बात की थी सीजीएस सिस्टम की, कि सीजीएस सिस्टम में क्या होगा। तो सीजीएस सिस्टम में जो डिस्टेंस है वो मीटर के जगह सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, तब हम वैल्यू मास की ग्राम में रख सकते हैं। फिर हमने बात किया था एसआई सिस्टम, जो कि इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट है, और जिसको हम जानते हैं कि ये जो यूनिट सिस्टम है इसको हमें यूज करना है मोस्टली साइंटिफिक यूनिट्स के लिए, जैसे न्यूटन और ये सारी चीजें। फिर हमने लास्ट लेक्चर, एकदम वेरी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कि एसआई प्रीफिक्स क्या होते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ है वो ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर रिव्यू कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने देखी थी फर्स्ट लेक्चर में। फिर फर्स्ट लेक्चर में हमने कन्वर्जन भी सीखा था कि टू दी पावर कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसको भी मैं आगे जाता हूँ और आप लोग देख सकते हैं वहां से। फर्स्ट लेक्चर रिव्यू कर ले मेरा, उसमें ये सारी डिटेल्स हैं। अब हम बात करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट पे और एक नया पॉइंट, और ये कई बार चीजें पूछ ली जाती हैं। तो ये नया कॉन्सेप्ट क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का थोड़ा सा बेसिक फीलिंग क्या है वो मैं आप लोग को पहले बता दूं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का बड़ा सिंपल सा मीनिंग है, लाइक अगर मैंने बोला हुआ है कि 9999 लिखा हुआ है, तो अगर आप बोलो कि यार ये नियरली 10,000 जितना ही है, तो ये जो 10,000 है ये नियरली 10,000 जितना ही हमने मान लिया, ठीक। अब क्वेश्चन यहाँ पर हमारा ये है कि ये जो चीज नियरली 10,000 जितनी है, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम बोल सकते हैं कि जो 1000 के ऑर्डर का है, ये 10,000 के ऑर्डर का है, मतलब 10 टू दी पावर कितने जीरोज हैं, 4। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी न्यूमेरिक नंबर को नियरेस्ट 10 टू दी पावर में लिखने को बोलते हैं हम साइंटिफिक मेथड में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये 999 तो आपको समझ में आ गया कि नहीं सर 999 तो क्लियर है, उतना बड़ा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 999 आपको एकदम समझ में आ गया। बट लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट वैल्यूज लिख देता हूँ, ठीक है। सपोज मैंने वैल्यू लिख दी एक 6357, एक रैंडम सा फिगर लिख दिया। तो आप बोलोगे कि सर ये 10,000 से तो बहुत ज्यादा दूर है, मतलब 10,000 के तो पास में भी नहीं है ये वैल्यूज बिल्कुल भी। बट आपको याद रखना है कि अगर ये वैल्यू 5,000 से ज्यादा है, वो जो हम राउंड ऑफ करते हैं ना, 5,000 से ज्यादा है तो उसको हम 10 टू द पावर 4 की तरह कंसिडर करेंगे। तो अब आ जाते हैं एक्चुअल सॉल्विंग में कि करना क्या है और हमें इसमें किस तरीके से देखनी है चीजों को। तो देखिए सबसे पहला नंबर 1, सपोज एक नंबर लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, तो आपको उसे साइंटिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक फॉर्मेट क्या होता है, किसी भी नंबर के लेफ्ट में सिर्फ एक ही डिजिट रहना चाहिए। मतलब सपोज लिखा हुआ है 30, तो आप इसे 30 नहीं लिखा रहने देंगे, हम साइंटिफिक फॉर्मेट में इसे लिखेंगे 3.0 इंटू 10 टू दी पावर 1। इसका मतलब है कि ये 3 इंटू 10 लिखा है, पावर 1 मतलब 10। सपोज यहाँ पे 400 लिखा होता, यहाँ पे 400 लिखा होता, तो इसका मतलब होता 4.0 इंटू 10 टू दी पावर 2, ये इसका मीनिंग होता। तो इस तरीके से हम ये डिस्कस करते हैं कि साइंटिफिक फॉर्मेट आपको लिखना आना चाहिए, जितने पॉइंट स्लिप कराने उतने जीरोस लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट हमें हटाने पड़ेंगे, मतलब 10 टू दी पावर क्या लाना पड़ेगा, 4। तो हम इसे लिख सकते हैं 4 पॉइंट पूरा लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हम इसे लिख सकते थे 4.5678 इंटू 10 टू दी पावर 4, ये पूरा हमारा डेटा है, हम इसे ये लिख सकते हैं। अब प्रॉब्लम देखना, अब कॉन्सेप्ट ऑफ राउंड ऑफ आता है क्या, कि अगर ये जो नंबर है, ये जो फर्स्ट नंबर है, ये अगर 5 से लेस देन है तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं, इसको एज अ 1 समझ लेते हैं। लेकिन अगर ये 5 से बड़ा है तो इसे हम क्या समझते हैं, 10 समझते हैं। तो अभी ये 5 से छोटा है, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर 4। मुझे लगता है सबको ये चीज समझ में आ गई होगी, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा।
लेट्स से हमने एक दूसरा नंबर लिया, हमने एक दूसरा नंबर लिया। दूसरा नंबर क्या है? 9234 ऐसे लिखा हुआ है, रैंडम से नंबर 9234। हमने इसे साइंटिफिक में कन्वर्ट किया, कितने जीरो स्लिप कराएंगे? 1 2 3। सो इसे हम लिख सकते हैं 9.23 इंटू 10⁻3। ठीक। अब ये जो 9.23 है ये 5 से बड़ा है, और मैंने बताया इफ द नंबर इज लेस देन 5 इग्नोर इट, कंसिडर इट एज 1, and if the number is greater than 5 then consider it as a 10, so it will be as 10। so इसका मतलब क्या है? ये 9 से बड़ा है, इसका मतलब इसे क्या एज्यूम करेंगे? 10। so ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में 10 टू द पावर 10 था, एक एक्स्ट्रा 10 और आ गया, विच मीन्स 10 टू द पावर 4 ही आएगा इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो मुझे लगता है ये बहुत ही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोग को अभी फील हो गया होगा। ठीक है, तो चलो एक नेगेटिव का एग्जांपल देख लेते हैं, सब लोग ध्यान देंगे। सपोज ये एक नंबर लिखा हुआ है, बहुत ही छोटा नंबर, हमें इसे पहले साइंटिफिक फॉर्म में लाना है, तो अब जीरो इस बार हमें इस तरफ लेके जाना है। तो बिकॉज ये छोटा नंबर है और हम बड़ा बना रहे हैं, तो पावर कैसी रहेंगी? नेगेटिव रहेंगी। तो इसका मतलब 1 2 3, 3 पॉइंट जाने वाला है ये पॉइंट, तो इसका मतलब 10 टू द पावर कितना आएगा? -3 आएगा। अब फिर वही बात, ये नंबर 5 से छोटा है, 5 को माइंड में रखना है, 5 इस पूरे क्राइटेरिया का मेन है, तो 5 से छोटा है, इसका मतलब फिर आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 टू द पावर -3। एक सेम एग्जांपल दिया मैंने कि पॉइंट स्लिप कराया 3 डिजिट, तो ये बन गया 6.98, 6.98 इंटू 10 टू द पावर -3, ये बन गया। बट अगर हम देखें तो ये जो नंबर है हमारे पास, ये हमारा क्या है? 5 से बड़ा है, इसका मतलब हम इसे क्या कंसिडर करेंगे? 10। अब यहाँ पे देखना मिसकॉन्सेप्शन, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इस मिसकॉन्सेप्शन में रहते हैं, इसलिए मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है वो ये सोचते हैं कि इसका मतलब ये है कि पावर 1 बढ़ा देनी है। बेटा पावर नहीं बढ़ानी है, इसका मतलब इधर 1 है या फिर 10 है। सो इफ इट इज लेस देन 5 तो इसे हम क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 5 तो इसे क्या लिखते हैं? 10 लिखते हैं। तो इट इज ग्रेटर देन 5 तो 10 लिखेंगे, बट ये 10 टू द पावर -3 है ना, और हम 10 लिख रहे हैं, मतलब 10 टू द पावर +1, तो -3 और +1 लेके क्या बना लेंगे? -2। इसका मतलब ये आंसर क्या होगा? गलत। ये आंसर बिल्कुल गलत है, बिकॉज ये बड़ा है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या है? 10, और हम अगर 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर -3 करेंगे तो बेटा 10 टू द पावर -4 नहीं आएगा, क्या आएगा? 10 टू द पावर -2, दोनों ऐड होंगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन रहेगा इस चीज का कि ये इनकरेक्ट आंसर है। देन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा 10 टू द पावर -2। सो ये करेक्ट आंसर होगा, ये इनकरेक्ट आंसर है। सो हम यहाँ पर देख भी सकते हैं, इसको लिख देते हैं यार, ये रॉन्ग आंसर है, हम इस चीज को ध्यान देंगे। तो ये सबको समझ में आया ना कि हम किस तरीके से पावर हम लिखते हैं किस चीज की? किसी भी ऑर्डर का मैग्नीट्यूड, मतलब अगर हमें कोई भी एक बड़ा सा नंबर फिजिक्स में दिया है तो हम उसे किस तरीके से ट्रीट करते हैं, यहाँ पर हम ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर नेगेटिव नंबर होगा तो बेटा नेगेटिव नंबर से कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है, वैल्यू वाइज वो वही रहेगा। विच मीन्स अगर मैं बात करता हूँ कि नंबर नेगेटिव है, लेट्स से आपने लिख दिया हुआ है यहाँ पर कुछ -5 3 4, तो इसका मतलब नेगेटिव से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, आप बस उसे ऑर्डर में कन्वर्ट करके रखो। ठीक है, तो वो कन्वर्जन वही रहेगा। फिजिक्स में नेगेटिव का मतलब यूजुअली डायरेक्शन से लिया जाता है, नेगेटिव बस सिर्फ रहेगा वहां पर। चले, तो फिर हम एक नए पॉइंट पे आते हैं, राउंड ऑफ करना। अभी हमने क्या देखा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किस तरीके से हमने डिस्कस किया, वो चीज देखी। अब हम देखेंगे राउंड ऑफ कैसे करते हैं। तो राउंड ऑफ बिल्कुल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की तरह है। आई गेस मोस्टली लोगों को पता है, सिर्फ एक चीज नहीं पता होगी, वो हम यहाँ पर देख लेंगे। देखें, आपको पता है कि जब राउंड ऑफ करते हैं लेफ्ट टू राइट की तरफ, सॉरी राइट टू लेफ्ट की तरफ, तो अगर वो नंबर 5 से बड़ा है तो ऐड करते हैं, अगर 5 से छोटा है तो ऐड नहीं करते। ठीक है, इसका मतलब देखें यहाँ पर नंबर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 4.5378। अब हम इसे राउंड ऑफ करना शुरू करते हैं। तो राउंड ऑफ करना है, आपको देखना है कि कहाँ तक आपको राउंड ऑफ करना है।
तो अगर आपको एकदम लास्ट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है तो आप सिर्फ कॉमन सेंस लगा सकते हो क्या, कि अगर आगे का नंबर 50 से बड़ा है तो इसका मतलब लेफ्ट तरफ एक ऐड होगा, और अगर 50 से कम है तो लेफ्ट तरफ ऐड नहीं होगा। डन। तो इसका मतलब अगर मैं 4 पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने लिखा 4.49999 कितना भी लिखा, अप्रॉक्सीमेटली जब मैं इसे एक नंबर में लिखूंगा तो सिर्फ लिखूंगा 4। लेकिन अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 पॉइंट, ये जो आगे का नंबर है 50 से ज्यादा है, लेट से 510003 कुछ भी, तो इस नंबर को मैं लिख सकता हूँ क्या, पूरा 5। तो ये टारगेट करना है कि ये जो पॉइंट के बाद का नंबर है 50 से ज्यादा है या कम है। तो ये हो जाता है एक फाइनल, अगर आपको डायरेक्टली राउंड ऑफ करना है तो हम किस तरीके से। अदरवाइज सिंपल मीनिंग क्या है, लास्ट डिजिट से सॉल्व करो, अगर ये 5 से बड़ा है देन इंक्रीज 1 इन द लेफ्ट वन। और सिंपल जो राउंड ऑफ की टेक्निक है हम वो टेक्निक यहाँ पर यूज करते हैं। सर अगर 50 हुआ तो? वेरी गुड डाउट यार, अगर 50 हुआ तो क्या करेंगे, तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि ये वाला सबको पता होगा, अगर 50 होगा तो क्या करेंगे वो आगे हम दिखाते हैं। ठीक है, तो अच्छा ऑलरेडी किसी को पता है क्या कि अगर 50 होगा तो क्या करते हैं, लेट्स सी, किसी को ऑलरेडी पता हो तो बताए, इसे राउंड ऑफ करके बताएगा। मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, लेट से लिखा हुआ है 3.245। डन। मुझे इसे पॉइंट के बाद 2 डिजिट में राउंड ऑफ करना है, मींस सिर्फ आपको ये 5 हटाना है। बताओ क्या आंसर आएगा, एनीवन आंसर? अरे 3 नहीं, 1 डिजिट नहीं, हमें यहां तक बताना है, हमें इसका जो राउंड ऑफ बताना है आपको, ये 3.24 तक बताना है। अब बताएं। 0.324। 0.324 नहीं, हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में नहीं कन्वर्ट करना, हमें सिर्फ राउंड ऑफ करना है, 5 को रिमूव करना है। तो बस मुझे ये बता दो कि 5 को रिमूव करूंगा तो क्या मैं इसे 3.24 लिखूंगा या फिर 3.25 लिखूंगा? 3.24। अच्छा, 3.24। ओके, गुड गुड। बहुत सारे लोग 24 बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग 25 बोल रहे हैं। किसी को एग्जैक्ट पता है कि एक्चुअल लॉजिक, अगर किसी को पता है तो बोले, हाउ वी डिसाइड कि ये नंबर 3.24 बनेगा या 3.25 बनेगा? एनीवन, समवन आंसर हु नोज when it will be 3.24 or when it will be 3.25? दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों करेक्ट है। किसी को पता हो कि कब होगा वो बता सकता है, किसी को नहीं पता? 3.24 नहीं, आंसर नहीं पूछ रहा हूं, आंसर नहीं पूछ रहा हूं। 3.24 3.25 क्यों नहीं रहेगा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कब ऐसा होगा, लॉजिक क्या है, किसी को अगर पता है तो बताए, अदरवाइज आई विल डिस्कस। किसी स्टूडेंट को पता है राउंडिंग ऑफ का लॉजिक व्हेन इट इज नंबर 5, लेस देन 5 इग्नोर, ग्रेटर देन 5 इंक्रीज, फॉर 5 क्या यूज करते हैं, बोले? समवन वाज स्पीकिंग। हाँ बोले। सर कुछ चेंज नहीं होगा। कुछ चेंज नहीं होगा मतलब आप बोल रहे हो इट इज सर्टेन कि 3.24 रहेगा, विच मीन्स आप ये बोल रहे हो नहीं सर 3.24 ही आंसर रहेगा। हाँ सर। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। कोई और, किसी को लॉजिक नहीं पता? ठीक है, लेट्स सी, हम देखते हैं। देखें, लॉजिक है बेटा इवन और ऑड नंबर का। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि सपोज ये नंबर जो 5 है, मतलब जब भी 5 को रिमूव करते हैं तो ये जनरल कंसिडरेशन लिया गया है कि अगर 5 रिमूव कर रहे हो आप, सो दिस नंबर शुड बी इवन। ये जो आंसर है, आंसर हमेशा इवन देंगे, आंसर विल ऑलवेज बी इवन, ऑड नहीं होगा कभी। तो इसका मतलब अगर ऑड हो गया, मतलब देखना मैंने अब क्वेश्चन दिया है 3.235, डन। तो इसका मतलब ऑड नहीं रहेगा, मतलब अगर इसे आप राउंड ऑफ करना चाहते हो सिर्फ 2 डिजिट तक तो इसका आंसर होगा 3.24। अब इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन अगर ये लिखा होता क्या, ये लिखा होता 3.245 तो फिर इंक्रीज नहीं होता बिकॉज इट इज ऑलरेडी इवन, सो इट विल बी 3.24। एक और एग्जांपल देते हैं, सपोज लिखा होता है 3.265
तो इसका मतलब इंक्रीज नहीं होता, क्या बन जाता 3.26। ठीक है, और अगर ये नंबर ऑड होता तो इंक्रीज कर देते हैं। क्लियर है सबको थंब रूल ना? अच्छा, अभी देखना, अब मैं एक एग्जांपल पूछता हूँ, आप लोग बताएंगे कहाँ तक राउंड ऑफ करना है। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक एग्जांपल बताएंगे सब लोग। 6.5352, इसको आपको राउंड ऑफ करना है 3 डिजिट्स, मींस अप टू दिस पॉइंट। राउंड ऑफ करें। 6.54। 6.54। ओके, वेरी गुड। तो सबको क्लियर है ना? इसका अगर मैं आंसर देखना चाहता हूं तो इसका आंसर हो जाएगा 6.54। क्लियर है? अच्छा, लेट्स सी। अब मैं एग्जांपल बदल रहा हूं, आई एम राइटिंग इट 6.5652। अब बताएं। वही रहेगा 6.56 6.56। अच्छा, सबको पक्का क्लियर है ना? 6.56 होगा। किसी को कुछ डाउट? नो सर। नो किसी सर। का कोई डिफरेंट ओपिनियन है तो बता दे, नो सर। बोले। If someone is having a different opinion, speak up. No? Okay. So इसका आंसर जो आप लोग बोल रहे हैं 6.56, ये गलत आंसर है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग गलत बोल रहे हैं। इसका आंसर होगा 6.57। ओके, तो अब मैं चाहता हूं कि some student explain why this answer will be 6.57. किसी को लॉजिक लगा? कोई है? More than 5. It's more than 5. सर पर आपने बोला था कि ये ऑड नंबर नहीं हो सकता। हाँ, तो सुने, अब देखो यहाँ पे लॉजिक है। द फर्स्ट लॉजिक विल ऑलवेज रिमेन, मतलब अगर नंबर 50 टाइप का है, मींस 5 के आगे का कोई नंबर है, तो अगर वो 50 से ज्यादा है तो इंक्रीज होगा ही होगा डेफिनेटली। मींस अगर मैंने यहाँ 5 के आगे कोई डिजिट नहीं लिखा तो ये लॉजिक काम करेगा जो मैंने इवन ऑड का बताया है। बट अगर यहाँ पे एक नंबर है, इट इज 2, दैट मीन्स इट इज 52 ना, तो ये इंक्रीज करेगा ही करेगा। समझ आया? सो हमने जो राउंड ऑफ के लॉजिक डिस्कस किए वो किस सिनेरियो को लेकर डिस्कस किया है, आई गेस वो अब सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट इस चीज को लेके? नहीं? No, sir. ओके, डन। तो इस चीज को हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, तो राउंड ऑफ के 3 रूल है, मैं फिर से बता रहा हूँ। नंबर 1, अगर 50 से कम है तो रिमूव कर देते हैं डायरेक्टली, अगर 50 से ज्यादा है तो इंक्रीज कर देते हैं। अगर सिर्फ 5 है, आगे कोई नंबर नहीं है, तो उसके लेफ्ट वाला नंबर जो रहता है वो हमेशा इवन रहता है। अगर ऑड है तो एक इंक्रीज करके इवन बना देंगे। हाँ, एक डिक्रीज करके मत इवन बना देना, इंक्रीज करके इवन बनाते हैं हमेशा। डन। सो विल मूव विद द नेक्स्ट पार्ट। राउंडिंग ऑफ हमें यहाँ पे पता चल गया है। ठीक, तो ये एग्जांपल था जो मैंने अभी आप लोग को बताया कि अगर नंबर 6.50 है, रिमेंबर अगर नंबर 6.50 है एग्जैक्ट 50, तो ये 0 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं। अब ये 5 के पहले वाला नंबर इवन है तो इवन ही रहेगा। लेकिन अगर ये 6.51 है, 50 से ज्यादा है, तो आप इस तरह मत करना सर 1 को रिमूव किया, देयर इज नो इफेक्ट ऑन 5। तो आपने कहा सर ये 6.51 को हम लिख सकते हैं 6.50, 1 को हटाया 5 बचा। अब 5 को हटाएंगे तो सर 6 बचेगा। तो अब ऐसे नहीं करना है, ऑलरेडी वो 50 से बड़ा नंबर था, दैट मीन्स वो 7 ही होगा। ये रूल मैंने पीछे आपको बताया कि आपको ये चीज ध्यान देनी है। डन। सो आई गेस ये चीज क्लियर है। तो अभी हमने 2 इंपॉर्टेंट चीजें देखी हैं। सेपरेट ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इस चीज को लेके कि इन फिजिक्स व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ योर आंसर। अब सब लोग सोच रहे होंगे सर ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या बता दिया। मतलब देखो इतनी छोटी सी बात है बट आपको क्वेश्चन गलत हो सकता है। मतलब आपने सॉल्व किया, लेट्स से फोर्स का आंसर आया, आपने सॉल्व किया फोर्स का और फोर्स का आंसर आया 3894 न्यूटन, और क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ योर आंसर, और आप ढूंढते रह जाओगे अरे यार हमारा तो इतना एफर्ट करके इतना अच्छा सा आंसर आया। सो यू मस्ट बी एबल टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ
ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसे लिख देंगे 3.89 इंटू 10 टू दी पावर 3, और बिकॉज ये नंबर 3 से छोटा है, सॉरी बिकॉज ये नंबर 5 से छोटा है, तो ये हट जाएगा, सिर्फ आंसर क्या आएगा 10 टू दी पावर 3। और सोच लो, ये वैल्यू देख के कभी सोचा था आपने कि आप आंसर 10 टू दी पावर 3 मार्क करोगे? कभी नहीं। तो इसलिए आपको ये चीज फेमिलियर होना चाहिए दैट देयर एग्जिस्ट अ टर्म कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। आपको आंसर में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना आना चाहिए। फिर थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि आपको कन्वर्जन आना चाहिए कि कैसे राउंड ऑफ करते हैं चीजों को। ठीक, अब हम यहाँ पे एक नया टर्म देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेके। अच्छा, अब सब लोग मेरी बात बहुत अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। यार ये सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है ना, इसको लेके बहुत मिसकॉन्सेप्शन है वेरियस बुक्स में, मतलब बहुत अच्छी अच्छी बुक्स में भी गलत आंसर दिया हुआ है। ठीक है, इवन एक बार जेई के एग्जाम में भी गलत आंसर दे दिया गया था, फिर बाद में जेई ने उसे करेक्ट किया है। तो इसलिए जो मैं चार्ट बना रहा हूँ, सब लोग को मैं चाहता हूँ आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को उसी फॉर्मेट में याद रखें। ठीक है, तो पहले मैं बताता हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल सिग्निफिकेंस समझें। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या है? सपोज मैंने आंसर लिखा हुआ है 2.2 सेंटीमीटर, डन, और किसी स्टूडेंट ने आंसर लिखा हुआ है 2.20 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका मतलब ध्यान दें। ठीक है, तो इसका मतलब आप लोग ये चीज ध्यान देंगे कि इन दोनों आंसर्स में क्या डिफरेंस है, किस चीज का डिफरेंस है इन दोनों आंसर्स में, वो आपको देखना है। तो अगर मैं बात करूं कि इन दोनों में क्या मैक्सिमम मतलब क्या डिफरेंस हो सकता है, मैथमेटिकली तो दोनों वैल्यू सेम है, मैथमेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, बट किस चीज में प्रॉब्लम है अगर हम वो देखें, तो प्रॉब्लम यहाँ पर कुछ ये है, 2.2 सेंटीमीटर में ये नेक्स्ट डिजिट नहीं दिखा हुआ है, जबकि 2.0 सेंटीमीटर बता रहा है कि मुझे ये डिजिट भी पता है। ठीक है, तो इस राइटिंग मेथडोलॉजी को हम बोलते हैं क्या, सिग्निफिकेंस मेथड। क्लियर? इसका मतलब अगर जिस बच्चे ने ये आंसर दिया है उसके में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2, और इसी स्टूडेंट ने जो आंसर दिया है इसके में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3। तो इसका मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उतना आंसर आपका अच्छा है। डन। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का आपको सबको आई गेस फीलिंग समझ में आया होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का फीलिंग क्या है। अब कुछ लोगों ने जिनका फर्स्ट लेक्चर नहीं था, जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर अभी तक रिव्यू भी नहीं किया है, उनको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा कि इन दोनों वैल्यूज का मतलब क्या है। तो मैं फिर से बता देता हूँ कि इनका मतलब क्या है। अगर मैं बोलता हूँ कि 2.2 सेंटीमीटर, या मैंने दिया कुछ आंसर 4.6 सेंटीमीटर, so this shows you have taken the values from a normal scale. बट अगर कहीं पे आंसर लिखा हुआ है 3.63 सेंटीमीटर, इसका मतलब नॉर्मल स्केल तो सिर्फ 2 ही डिजिट बता सकती थी, वो स्टूडेंट कोई अच्छी स्केल यूज कर रहा है, दैट्स व्हाई ही नोज द थर्ड डिजिट। और इस वाले क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो जाएंगे, 3। ठीक, दैट मीन्स इस स्टूडेंट की रीडिंग क्या है, काफी अच्छी है और प्रिसाइज है इस चीज को लेके। तो मुझे लग रहा है सिग्निफिकेंट डिजिट्स का सिग्निफिकेंस हमें क्लियर है, सिग्निफिकेंस में हमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, ओके, सो लेट्स सी अब एक्चुअल रूल क्या है। मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत सारी वैरायटी ऑफ बुक्स में बहुत ही डिफरेंट से वैल्यूज दी होती हैं, तो जिससे आप लोग बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो, और मैं जिस तरीके से रूल्स आपको बता रहा हूँ, आप उन रूल्स के फॉर्मेट में चीजों को याद करने का ट्राई करेंगे तो काफी बेटर रहेगा सबके लिए। डन। सो विल सी कि क्या वो रूल्स हैं। सो हमें ये याद रखना है कि देयर आर 6 रूल्स, दैट पर्टिकुलर सिनेरियो 6 रूल्स हैं। अब वो 6 रूल्स क्या क्या है वो आपको ध्यान देना है, तो वो 6 रूल्स देख लेते हैं। हाँ कार्तिक, यू रेज्ड योर हैंड, बताएं, एनी डाउट? सर अगर 0 पॉइंट समथिंग होगा तो 0 को भी लेना है वो। ओके, सो वही इसीलिए हमने क्या किया, रूल्स बना के रखा है। सारे स्टूडेंट्स, देयर आर 6 रूल्स, हम वो सारे रूल्स लिख के याद करेंगे। अभी मैं अभी चाहता हूँ आप लोग अभी याद कर लोगे और उसके अकॉर्डिंग ही काम करोगे। ठीक है, मैं रूल्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सारे लोग को समझेंगे। नंबर 1, उस रूल के अकॉर्डिंग ही हमेशा सिग्निफिकेंट करना है। किसी बुक से, इंटरनेट से
कुछ भी रीड नहीं करना है, बहुत मिसकॉन्सेप्शन है सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेके। सो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग अभी याद कर लें क्या पर्पस है सिग्निफिकेंट फिगर का, वो मैंने बताया। अब हम आंसर याद करते हैं। डन। रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब प्रॉब्लम बेटा जीरो को लेके होगी, क्योंकि नॉन जीरो नंबर है मतलब वो सिग्निफिकेंट फिगर ही है। मतलब अगर कहीं पे आंसर लिखा हुआ है क्या 1 2 4 5, सो इट मीन्स अगर कहीं पे 1 2 4 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वहां पर। डन। देन ओके, सेकंड रूल क्या है? सपोज हमने ये वैल्यू देखी कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, लिखा हुआ है 289, सो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 289 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो आई गेस सबको क्लियर होगा कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें हो जाएंगे हमारे। फिर बात करते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है? द जीरो इन बिटवीन नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब अगर कभी लिखा है कि दो नंबर्स के बीच में जीरो है, मतलब समझो कि वो सिग्निफिकेंट होंगे ही होंगे। तो सपोज लिखा हुआ है 2002, तो इसका मतलब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर्स कितने हैं? 4। लिखा हुआ है 103, तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स के कितने नंबर हैं? 3। तो मुझे लग रहा है ये थंब रूल आप लोग को क्लियर हो गया होगा, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे। तो रूल नंबर 1, अगर नॉन जीरो नंबर है मतलब 1 2 लेके 9, तो सारे नंबर काउंट करने होते हैं। नंबर 2, जीरो के साथ प्रॉब्लम है, जीरो अगर बीच में आते हैं तो उन्हें काउंट करते हैं। दैट मींस इस 2002 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 103 में 3। अब नंबर देखेंगे इन अ नॉन डेसिमल नंबर, मतलब सब लोग ध्यान देंगे, इन अ नॉन डेसिमल नंबर द जीरोस बिफोर the first non-zero number and the zeros after the non-zero number are insignificant figures। मतलब सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। इसका मतलब याद रखना है कि जीरो पहले हो या बाद में हो, वो सारे इनसिग्निफिकेंट काउंट होते हैं। मतलब क्या है कहने का, क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। सपोज लिखा हुआ 2400, तो आपको तो लग रहा होगा, लेट्स सी आपने लिखा 2400, तो आपको लगेगा अरे सर ये तो मतलब वैल्यू वाइज है। तो याद रखना है ये जो जीरोज हैं राइट साइड के जो ओपन जीरोज हैं वो काउंट नहीं होते। फिर हम बात करते हैं लेफ्ट। तो लेफ्ट में लिखा होता, अगर ये लिखा होता लेट्स से 0 to 400, तो बेटा लेफ्ट के जीरो भी काउंट नहीं होते। ठीक है, तो हमें अभी क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? हमें कॉन्सेप्ट समझ में आया कि किसी भी चीज में अगर हम बात करें तो जो एक नॉन डेसिमल नंबर है, सब लोग ध्यान देना माइंड में, मतलब इसमें कहीं पे पॉइंट नहीं है, तो जो जीरोस ओपन है लेफ्ट हो या राइट हो वो क्या होते हैं? इनसिग्निफिकेंट फिगर। मतलब 003 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1। 1 2 3 00 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3, क्योंकि ये जीरो हम काउंट नहीं करते। तो जीरो चाहे आगे हो या पीछे हो हम उन्हें काउंट नहीं करते हैं। तो अब तक हमने 3 रूल्स देखे, मैं फिर से 3 रूल्स रिकॉल कराता हूं आपको। नंबर 1, सारे नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं। नंबर 2, जीरो के साथ सिर्फ प्रॉब्लम होती है, तो जीरो अगर दो नंबर्स के बीच में है तो उसे फिर काउंट कर लेते हैं। लेकिन अगर एक नॉन डेसिमल नंबर में जीरो लगा है ओपन कहीं पे भी, तो उसे काउंट नहीं करते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे सर नॉन डेसिमल नंबर सपोज ऐसा लिखा हुआ है 0 0 3 0 2 0 0 0 0। अब बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे? तो मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो कैसे काउंट करेंगे। होंगे 3। तो क्लियर है क्या कि दिस इज अ नॉन डेसिमल नंबर? ठीक है, सो बिकॉज इट इज अ नॉन डेसिमल नंबर, ओके इट्स बेटर। आंसर करने के बाद सब लोग माइक ऑफ कर लिया करें तो बेटर रहेगा। देखें, सो अगर हम बात करें राइट साइड के ओपन जीरोस, उनको बिल्कुल भी हम काउंट नहीं करते। तो ये जो राइट साइड के ओपन जीरोस हैं ये इनसिग्निफिकेंट है। जो लेफ्ट साइड के ओपन जीरोस, ओपन का मतलब कोई नंबर नहीं है, वो वेस्ट, नो सिग्निफिकेंट। बट ये जो बीच में जीरो है
हम इसको हमेशा काउंट करते हैं, तो इसका मतलब कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं इस बार? 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे इस क्वेश्चन में हमारे पास। चले नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो अभी तक हमने बात की नॉन डेसिमल नंबर की, अब हम बात करेंगे डेसिमल नंबर जिनमें डेसिमल प्लेसेस हैं। सो देखें सर अगर हाँ सर अगर नंबर नेगेटिव में है तो सिग्निफिकेंट नेगेटिव में होगा। बात करते हैं, आगे आगे लेके जाते हैं कि अगर नंबर नेगेटिव में है। फिजिक्स में नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता यार, मैथ में बहुत ज्यादा नेगेटिव को लेकर डिस्कशन होता है। फिजिक्स में यूजुअली नेगेटिव का पर्पस होता है डायरेक्शन दिखाना। किसी और को कोई डाउट है तो पूछें। शुयस डाउट है तो पूछें। सर वही डाउट है। ओके, तो वो 0 लास्ट में, तो हम उन्हें काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। चले सो अब बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 है इन अ डेसिमल नंबर, मतलब कि अगर एक पॉइंट वाला नंबर है जिसमें कुछ पॉइंट्स हैं, तो फिर क्या करते हैं? तो देखें ये जो पॉइंट है, पॉइंट अगर लगा हुआ है तो उन नंबर्स के साथ एक खास बात है, मैंने सपोज लिखा, सुनेंगे 003.0200, ये चीज है। तो इस डेसिमल नंबर है, आगे पीछे मत देखो, रूल अभी वही है। अगर डेसिमल नंबर है तो ये जो ओपन जीरोज हैं ये काउंट होते हैं, कौन से? राइट साइड वाले, और ये जो लेफ्ट साइड वाले हैं ये काउंट नहीं होते। डन। तो मुझे लगता है ये डेसिमल के बारे में आपको इस चीज के को लेके बहुत ही क्लियर होगा। तो अब हम सारे एग्जांपल देखते हैं। देखें विश्वराज पूछें, डाउट है कुछ? सर मतलब डेसिमल के आगे कितने भी जीरो लगाए तो वो सिग्निफिकेंट ही होगा? हाँ, डेसिमल के आगे नहीं, क्वेश्चन समझना। इन अ डेसिमल नंबर, मतलब अगर वो डेसिमल नंबर है, मतलब कहीं पे भी उसमें डेसिमल लगा है, तो उसके जो एंड के जीरोज होंगे, जो ओपन है, मतलब जो दिखता है कि वेस्ट है, वो काउंट करते हैं, दे आर सिग्निफिकेंट। और जो लेफ्ट में ओपन जीरोज हैं वो हम काउंट नहीं करते हैं। मतलब समझे, इधर पे देखेंगे इस एग्जांपल से कि इस क्वेश्चन में एक डेसिमल लगा था, तो डेसिमल लगा था तो ये जो ओपन जीरोज, मतलब एक नंबर के बाद के जो जीरोज हैं ये वेस्ट होगा, काउंट नहीं होंगे। लेकिन ये पूरे काउंट होंगे क्योंकि ये जीरो तो बीच में है। अब थॉट ये है कि पॉइंट के बाद के जो जीरोज हैं वो भी काउंट होते हैं। तो 3 to 5 और 5 और 3 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे? 8। बुक में ये दिया होता है। बुक में क्या नहीं दिया होता बेटा? बुक में ये एग्जांपल नहीं दिया होता। सुनना, बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा कि अरे सर ये तो पॉइंट के बाद लिखा हुआ है, ये काम आएगा। मतलब मैं एग्जांपल देता हूं, ये लिखा हुआ है 0.003, तो आप बोलोगे अरे सर ये तो तीनों जीरोस इंपॉर्टेंट है। नहीं, नंबर के बाद जो जीरोस हैं ओपन, उनको हम काउंट नहीं करते हैं। किस तरफ वाले? लेफ्ट तरफ वाले। अगर राइट में होते जीरो, लिखा होता है ये 30, तो फिर हम काउंट करते हैं और नंबर आ जाता सिग्निफिकेंट फिगर्स का 2। तो ये ध्यान देना है। तो इस क्वेश्चन में ये जो इधर के 4 जीरोस हैं ये वेस्ट, इधर के काम आ जाएंगे 2 2 2। कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 6। फिर से एक बार बताता हूँ, एक और एग्जांपल। पॉइंट में हमें नहीं देखना, हमें सिर्फ देखना है कि इट शुड बी अ डेसिमल नंबर। हमें ये नहीं ढूंढना कि डेसिमल कहां पर है। एवरीवन नोट, डेसिमल कहां पर है ये नहीं ढूंढना है, सिर्फ चेक करना है इज इट अ डेसिमल नंबर। अगर डेसिमल नंबर है तो जो फ्री जीरोज हैं, जिनके आगे कोई नंबर अब नहीं है, तो ये फ्री जीरोज काउंट नहीं करते लेफ्ट वाले, राइट वाले फ्री जीरोज काउंट करते हैं। तो राइट में तो फ्री जीरोज है नहीं है, 604 एक नंबर है, कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3। बट अब यहाँ पे देखो 0.04, 4 के पहले के ये जीरोज काउंट नहीं होंगे, 4 के बाद के ये जीरोज काउंट होंगे। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर यार ये गलत है, ये आंसर गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें। ठीक, सेम चीज यहाँ पर, पॉइंट मैटर नहीं करता कि कहां पर है। देखें ये फ्री जीरोज हैं, ये काउंट नहीं होंगे, बट ये पॉइंट के बाद के जीरोज हैं, ये काउंट होंगे। आंसर होगा 3। तो मुझे लगता है ये यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। यश गुप्ता पूछे, एनी डाउट? हाँ सर, वो थर्ड एग्जाम्पल में डाउट था।
हाँ पूछे, वो क्लियर हो गया ना? हाँ सर। डन। और किसी को कुछ डाउट है सिग्निफिकेंट फिगर्स का? पार्ट नंबर 4, अगर डेसिमल नंबर है तो डेसिमल मत देखने लगना रे कहां पर डेसिमल है, लेफ्ट राइट क्या, नहीं। अगर डेसिमल नंबर है तो कॉन्सेप्ट ये है कि लेफ्ट के ओपन जीरोस वेस्ट, राइट के ओपन जीरोस काउंट करना है। ज्यादा फीलिंग नहीं लगाना। मतलब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे ना, अरे सर ये तो फील नहीं हो रहा कि 0.003 कैसे हो गया, ये वाले हमने जीरो क्यों नहीं काउंट किए जबकि ये तो दिख रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट जीरोस हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों ऐसा होता है। ठीक, तो अभी के लिए समझ लेना है कि अगर डेसिमल नंबर है तो लेफ्ट के जीरोस नहीं काउंट करते, सिर्फ राइट वाले काउंट करते हैं। और ये मैं बोल रहा हूँ ओपन जीरोस, ये मत सोचना कि डेसिमल के लेफ्ट और राइट में, ये नहीं सोचने लगना डेसिमल के लेफ्ट और राइट में, मैं ओपन जीरोस की बातें कर रहा हूँ। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो पूछे। तो अब मैं स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा हूँ, सब लोग एक बार पूरे एग्जाम्पल देख लें और फिर मैं आगे नंबर 5 पे जाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 रीड करें सब लोग, कुछ डाउट है तो पूछें। सर फिर वो एग्जाम में कैसे लिखना है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो? एग्जाम में एग्जैक्ट यही पूछा जाता है। मैं एक जेई का क्वेश्चन देता हूँ, आईटी जेई में 2013 में आया था कि मतलब ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन थे, मैं सिर्फ एक दे रहा हूँ। उसमें सिर्फ क्वेश्चन ये था व्हाट आर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इन गिवन वैल्यूज। तो एक वैल्यू लिखी थी 2.30, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। फिर एक वैल्यू थी 0.02, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर था। और एक वैल्यू थी 2.8 इंटू 10⁻⁻⁴, इसमें कितने थे। और ऐसे एबीसी करके ऑप्शन थे, 1 2 3 ऐसे कॉम्बिनेशन बने हुए थे। चलो पूछ लेते हैं आप लोगों से, बताओ पहले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। सबको क्लियर है? ओके डन, गुड गुड। तो पहले में आंसर होगा 3, दूसरे में कितने आंसर होंगे? 1। 1। अच्छा बताओ, मोस्टली स्टूडेंट ने क्या आंसर मार्क किया होगा? जिनको 2, वेरी गुड। मोस्टली स्टूडेंट ने जो आंसर मार्क किया है वो मार्क किया है 2। ठीक है, तो हमें याद रखना है, हमें ऐसी गलती नहीं करना है, हमें अकॉर्डिंगली प्रोसीड करना है। डन। एक बार तीनों रूल्स पढ़े, ये रूल क्लियर है तो मैं रूल नंबर 4 दिखाऊंगा। ठीक है,
डन। तो आई गेस अप टू 4 आप लोगों ने एक बार देख लिया है, मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो टिल पॉइंट नंबर 4 आई गेस क्लियर होना चाहिए कि इन अ डेसिमल नंबर कैसे हम चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फिर रूल नंबर 5 पे आते हैं कि सपोज देयर आर पावर्स, तो फिर हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे। सो समझे, द सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल नंबर 5, डू नॉट चेंज बाय द चेंजिंग नंबर ऑफ पावर। क्लियर, मतलब अगर आप पावर बदल भी दो तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, मतलब एग्जाम में जो दिया है वैसा ही आंसर करोगे। मतलब समझे, सपोज एग्जाम में गिवन है आपको 15 पॉइंट इंटू 10⁴ में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपने कहा सर 2। डन। अब कुछ स्टूडेंट करेंगे नहीं सर, लेट से 15 100⁻² दिया होता, तो बेटा 1500 को टारगेट करते हैं, पावर को नहीं देखते। तो 1500 में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2। लेट से क्वेश्चन लिखा होता इस तरीके से 15.002 इंटू 10⁴, तो फिर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो डेसिमल नंबर लगा है ना, तो राइट के जीरोस काउंट करते हैं, मतलब कितना आंसर होता, 4। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे नहीं सर, सोचो मैं ये पावर 4 का मल्टीप्लाई कर देता तो ये बन जाता कितना, 15, 1 2 3 4, 4 जीरो। सर अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते, तो बेटा अब आंसर आएगा क्या, 2। बट नहीं करना है, याद रखना है जो एग्जाम में दिया हुआ है सिर्फ वही आंसर करना है, पावर के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। ये एज्यूम करके चलना है देयर विल बी नो चेंज बाय द चेंजिंग ऑफ पावर्स। तो जो लिखा रहे बस वो आंसर करना है। मतलब आपने देखा सर ये लिखा हुआ है 2.30 इंटू 10⁻³ या 2, तो आपने कहा सर 10⁻² मतलब मल्टीप्लाई करा तो आंसर क्या आ जाएगा, 230। तो बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा है ये, तो आपको 10⁻³ को यूज नहीं करना, सिर्फ इसे यूज करना है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3। अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आपको दिखने लगेगा 2 जैसा, जो कि गलत आंसर है। तो एग्जाम में याद रखना पावर चेंज नहीं करनी है कभी भी, सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई भी फर्क नहीं डालना। ओके, सो लास्ट रूल, रूल नंबर 6, कि जब बेटा पावर से कुछ चेंज नहीं होगा, तो हमें पता है वो जो ऐसा ही प्रीफिक्स है ना, ये मीटर किलोमीटर ये सब, तो ये तो पावर से ही बदलते हैं। इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट चेंज बाय चेंजिंग द यूनिट आल्सो, यूनिट बदलने से भी नहीं बदलेंगे। मतलब सोचो एग्जाम में दे दिया 1500 मीटर, नाउ कन्वर्ट दिस इनटू सेंटीमीटर, तो बेटा 1500 को क्या कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा 1500। और आप सोचोगे 1500 में कितने आंसर होगा, 2 आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नहीं, कभी भी एग्जाम में अगर बोल दे कि बेटा यूनिट चेंज करो, चेंज ही नहीं करना है, यूनिट चेंज पे आंसर चेंज नहीं होगा। मतलब अगर लिखा हुआ है 15.00, तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 4 ही रहेंगे, यही आंसर होगा। अब कुछ पूछ रहे होंगे सर ऐसा क्यों हुआ, तो रूल यही है कि ये जो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो किसने कहा कि 0 का मल्टीप्लाई करा दो, हम ये भी तो लिख सकते हैं ना कि 15.00 इंटू 10⁻², तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 4। डन। तो ये दोनों पॉइंट नोटिस करें एक बार, प्रॉपर सब लोग अपने माइंड में ये दोनों थॉट्स को सेव करें, सारे एग्जांपल देके, कुछ डाउट हो तो बताएं। सर पॉइंट के पहले 150 हुआ तो क्या डाउट है, पूछे आगे। वो 15.00 के अलावा 150.00 हुआ तो ओके, 150.00 तो काउंट करते हैं हम उसे, 150 को तो काउंट करते हैं ना, विच मीन्स आप बोल रहे हो क्वेश्चन लिखा हुआ है 150.0, तो बेटा ये डेसिमल नंबर है ना, तो ओपन जीरोस काउंट होते हैं। ये 3 ओपन जीरोस है ना, एक नंबर के बाद फ्री है, बट वो तो फ्री काउंट होते हैं, डेसिमल से कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर डेसिमल है तो बस ओपन सारे काउंट होंगे, तो आंसर आ जाएगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, 5। और कोई डाउट, चले तो हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। हमने 6 रूल्स देख लिए, मैं फिर से रिव्यू कर देता हूँ सारे 6 रूल्स, अब सब लोग माइंड में रखेंगे अच्छे से। नंबर 1,
ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज आर सिग्निफिकेंट। नंबर 2, प्रॉब्लम 0 के साथ होती है, अगर 0 बीच में आया तो काउंट करेंगे, काउंट कहने का मतलब है मेरा सिग्निफिकेंट जैसा काउंट करेंगे। रूल नंबर 3, अगर नंबर में कहीं पे भी डेसिमल नहीं है, पॉइंट नहीं है, तो उसके लेफ्ट राइट कहीं पे भी हो, सबको हम क्या करते हैं, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, काउंट नहीं करते हैं। रूल नंबर 4, अगर डेसिमल आ गया तो जो लेफ्ट के ओपन जीरोज हैं, अगर डेसिमल आ गया तो ओपन जीरोज जो लेफ्ट के हैं उनको काउंट नहीं करते, और राइट के जो जीरोज हैं उन्हें काउंट करते हैं। डेसिमल प्लेस मैटर नहीं करता कि कहाँ पे लगा है, हम सिर्फ टारगेट करते हैं वेयर आर आवर न्यूमेरिकल वैल्यूज, देन जो ओपन जीरोज हैं, फ्री जीरोज, तो लेफ्ट के फ्री जीरोज काउंट नहीं करते हैं, राइट के फ्री जीरोज काउंट करते हैं। तो ये हमारा सिंपल रूल था। रूल 5 कि कभी भी पावर्स को मल्टीप्लाई मत करने लगना, जैसे रखी हो रखी रहने देना, पावर के साथ जो नंबर है हमेशा उसकी बताना है आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 2.30 रखा है, ये डेसिमल नंबर है, तो अगर डेसिमल नंबर है तो हम जीरोस राइट वाले काउंट करेंगे, तो कितना हो गया सिग्निफिकेंट फिगर 3, मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे पावर से कभी। फिर क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि यूनिट चेंज कर दो, तो यूनिट हम चेंज करेंगे या ना करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब क्वेश्चन में जो आंसर दिया होगा हम वही आंसर हमेशा देंगे। क्लियर? तो मुझे लगता है ये 6 रूल सबको याद होंगे, एक बार सब लोग अपने माइंड में रिकॉल कर लें, सारे स्टेप्स याद कर लें कि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन आता है इससे, बट बिकॉज स्टूडेंट केयर नहीं करता इन छोटी छोटी चीजों का, इग्नोर कर देते हैं और इसलिए गलती हो जाती है। तो मैंने अभी आई के सारे पॉइंट्स कवर किए, एक बार देखें, किसी को कुछ डाउट है तो पूछें। ओके, सो नहीं है तो हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। क्या सोचो एग्जाम में कितना भी जीरोज लिखा हो, एक स्टूडेंट का शायद आगे से आया हुआ है, कितने भी जीरोज हो, अगर डेसिमल नंबर है तो लेफ्ट के काउंट नहीं करते, राइट के काउंट करते हैं, तो इस गिवन वैल्यूज में 6 वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक, चले अब हम काम की बात पे आते हैं एक नई। सोचो आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया है क्या कि बेटा लेट से फोर्स है हमारा 2.3 और फोर्स नहीं, लेट से मास है हमारा 2.3 और एक्सीलरेशन है 5। क्लियर? तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं फोर्स का, 11.5। अब आप सोचो आपसे एग्जाम में अगर ये पूछ ले तो समझ जाना है बेटा कि ये आंसर नहीं करना। इसका मतलब ये है कि वो आपसे एक एक्सपेरिमेंट पूछ रहा है, और जब भी हम फिजिक्स में एक्सपेरिमेंटल डेटा की बात करते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को बहुत वैल्यू करते हैं। मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1, तो यार आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे आ सकते हैं। मतलब इसका हुआ कि आपने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक ने और कुछ एक खराब सा एक्सपेरिमेंट किया और दोनों ने मिलकर एक बहुत अच्छा आंसर दे दिया जिसके सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं। नहीं, साइंस में ऐसा हम कंसिडर नहीं करते। तो इसका मतलब जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर्स को डील करेंगे, या फिर जब हम फॉर्मूले में मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कंसिडर करेंगे, वो अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चले देखेंगे, सब लोग ध्यान देंगे। रूल नंबर 1, क्या जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि आंसर, मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्लीज आंसर योर फाइनल आंसर, एक्सप्रेस योर फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसका मतलब ये समझ जाना कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान देना है। बट रूल क्या है, ये स्टार मार्क वाला रूल है, और मैं फिर से बता रहा हूँ बुक्स में ये रूल गलत दिया होता है, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना और मेरे पास आके नहीं पूछना सर ये आंसर गलत है क्या है। किसी को कुछ भी गलत आंसर मिलता है एक बार व्हाट्सएप कर दो, हम एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे उसे। बुक्स में बहुत सारी गलत चीजें दी होती हैं। क्वेश्चन कहेगा फाइंड योर आंसर इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, बट आपको ध्यान देना है इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डू नॉट काउंट सिग्निफिकेंट फिगर। ये ट्रिक करने का तरीका है, आपको क्वेश्चन में कहेगा ही
आंसर इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ध्यान देना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं काउंट करना। क्या काउंट करना है फिर? इन फाइनल आंसर द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल। नोटिस करेंगे सब लोग, द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल, ये थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या होगा? द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल शुड बी सेम एज मिनिमम ऑफ द गिवन डेटा। मिनिमम ऑफ द गिवन डेटा ये होना चाहिए आपका, मिनिमम डेसिमल प्लेसेस। तो याद रखें, नेवर काउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स। व्हाट इज द लॉजिक? देयर मस्ट बी मिनिमम डेसिमल प्लेसेस। अब एग्जांपल के थ्रू आप लोग फील करेंगे। लेट्स से एग्जाम में मुझे 2-3 चीजें सॉल्व करनी थी, 3 चीजों का ऐड करना था। पहली वैल्यू थी 303, दूसरी वैल्यू थी 0.1000, तीसरी वैल्यू थी 2.10। अब देखना सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3। ये बाय मिस्टेक लिख दिया, गलत है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3। तो अगर हम बात करें कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्मेट में अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्वेश्चन एक बार गलत हो सकता है, ठीक, बट डेसिमल प्लेस के फॉर्मेट में हमें सॉल्व करना है। मतलब आप तीनों को ऐड करो, ये 0 आएगा, ये 3 आएगा, ये 0, ये 3, 1, 1, 5 और ये 2। हमारा आंसर ये है। बट हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में पूछा है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का थंब रूल होता है देयर शुड बी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स। बट मैंने आपको अभी बताया, डू नॉट फॉलो दिस रूल जो बुक में गिवन होता है, फॉलो द मिनिमम सिग्निफिकेंट रूल नहीं। क्या फॉलो करना है हमें? डेसिमल प्लेस, मिनिमम डेसिमल प्लेस। इसके पास कितना प्लेस है? मिनिमम डेसिमल के बाद 2, और इसके बाद डेसिमल के पास 3, इसके बाद डेसिमल के प्लेस 4। अच्छा सॉरी, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लिखा था, ये डेसिमल प्लेस लिखा हुआ था, तो ये चीज सही लिखी हुई थी, ठीक है। हाँ, तो अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे डेसिमल प्लेस 2, यहाँ पे 4, ये 3। आंसर में कितने होने चाहिए? मिनिमम डेसिमल प्लेस मतलब 2। अब ऐड करते हैं। आंसर देखो, डेसिमल के पास कितने प्लेस है? 4। तो हमें आंसर में कितने रखने चाहिए? 2। अब यहाँ पे लॉजिक क्या आता है? राउंड ऑफ का लॉजिक। तो ये समझ में आया आप लोग को कि हमने राउंड ऑफ क्यों पढ़ाया है? जब आपका आंसर कुछ रैंडम सा आएगा और हमें उसे राउंड ऑफ करके सिग्निफिकेंट बनाना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर वैल्यू वहां पे काम करेंगे। तो डेसिमल के प्लेस कितने रहेंगे? 2। तो 2 डेसिमल प्लेस हमारे होने चाहिए, जो कि करेक्ट आंसर है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स में बात कर लेते हैं। तो बेटा पहले में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3। दूसरे में कितने हैं? 4। तीसरे में सिग्निफिकेंट कितने हैं? 3। तो फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? 3। तो अभी 3 दिख रहे हैं ना? हाँ सही है। ये क्वेश्चन जस्टिफाई होता है जो बुक में दिया होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का डेफिनेशन। अब हम जरा नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करें। देखें, हमें ऐड करना है 0.803। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3। 0.1000 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 4। 0.10 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 2। तो हमें आ रहे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? 2, अगर बुक का माने तो। बट हम ऐड कर लेते हैं। लेट्स से हमने ऐड किया और सॉल्व करके आंसर ये आया। अगर आप बुक के अकॉर्डिंग देखोगे और 2 सिग्निफिकेंट फिगर देखोगे तो आपका आंसर आना चाहिए था 1.0। ठीक है, आपका आंसर आना चाहिए था 1.0। बट अगर हम बात करें कि बुक का जो थॉट है वो गलत है, हमें क्या देखने होते हैं? मिनिमम डेसिमल प्लेसेस। तो इस पे डेसिमल प्लेस कितने हैं? 3। इस पे डेसिमल प्लेस मतलब डेसिमल के राइट साइड वाले। इसमें कितने? 4। इसमें कितने? 2। तो हमारे आंसर में भी डेसिमल प्लेस होने चाहिए 2। मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये रॉन्ग आंसर है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर 1.0 1.00 सेम बातें है ना? सेम बातें नहीं है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब हम एक्सपेरिमेंटल डेटा की बात करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैं फिर आपको बता रहा हूँ फिर से चीजें, आपको ध्यान देना है। सिग्निफिकेंट फिगर्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डू नॉट काउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स, काउंट द डेसिमल प्लेसेस आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो जितने मिनिमम डेसिमल प्लेस होंगे, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 2, सो आंसर मस्ट कंटेन मिनिमम डेसिमल प्लेस। So our minimum decimal place is 2 for this particular case. So our answer must contain this. तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ
और उसको सॉल्व करके आप लोग वैल्यूज लिख के हमें मैसेज करेंगे। ओके आदित्य, पूछे डाउट? एनी डाउट पूछे? आदित्य एनी डाउट? किसी को कोई डाउट पूछे? सर हाँ पूछे। Okay, now everyone solve this. I need the final answer in terms of significant figures. एग्जाम में आपको ये 3 वैल्यूज ऐड करने के लिए दी हैं एंड द क्वेश्चन इज रिटन फाइंड द समेशन ऑफ दीज 3 वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये 9 है, तो आंसर मी इन द चैट बॉक्स। आई नीड द आंसर इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो मतलब एग्जाम में पूछा जाता है। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर एज पर द एग्जाम आपको बताना है। चैट बॉक्स में देखें, फर्स्ट 3 एग्जांपल हम देखते हैं। व्हाट विल बी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि प्यार क्या होता है। वेरी गुड अर्जुन, करेक्ट आंसर। अर्जुन, मिन्मय, समर्थ, आर्या, आयुष, इट्स नॉट करेक्ट आंसर। नॉट करेक्ट आंसर। यश गुप्ता, नॉट करेक्ट आंसर। आर्यन, जय, वेरी गुड। चले आंसर करना बंद करें, बस ठीक है, काफी, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट है। विल डिस्कस। देखें सही है, सब लोग ध्यान दें, बहुत सारे टाइप्स हो गए। अब देखें, चले इसे ऐड करते हैं। सो फाइनल एडिशन आएगा, देख लेते हैं, सॉल्व करें सब लोग। सो हमने ऐड किया, ये आया 5, 7 3 0 कैरी 1 2 कैरी 1 15। सो आंसर है 15.2। अब अगर आप किसकी मानेंगे, अगर आप बुक की मानेंगे तो बुक बोलता है देयर मस्ट बी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें कितने हैं 4, इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है 2, तो आंसर में होने चाहिए 2। तो एज पर द बुक आंसर होना चाहिए 15, विच इज इनकरेक्ट आंसर। हमें क्या बताना है, देयर मस्ट बी मिनिमम डेसिमल प्लेसेस। तो मिनिमम डेसिमल प्लेसेस इसमें 3, इसमें 2 और इसमें 1। सो इन आवर आंसर देयर शुड बी मिनिमम डेसिमल प्लेसेस। सो द करेक्ट आंसर विल बी 15.2। अब कुछ लोग सोचेंगे सर ये कहा गया, ये मतलब राउंड ऑफ कर दिया, 5 को हटाया, 0 है, कोई फर्क नहीं, 1 बन जाएगा, 1 हट जाएगा, 2 बन जाएगा। आंसर विल बी 5.2। सो ये फाइनल करेक्ट आंसर है। बहुत सारे ही स्टूडेंट्स ने एकदम करेक्ट आंसर लिखा है, कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा है 15.20, जो कि गलत है। करेक्ट आंसर है 15.2, याद रखें 15.20 इनकरेक्ट आंसर होगा। 15.20 इनकरेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर होगा 15.2। डन। सो ये चीजें हैं, मुझे लगता है आप लोग को काफी क्लियर समझ में आ गया होगा कि क्या आंसर होगा। चले एक और सॉल्व करें, इसे सॉल्व करें सब लोग। एक बार इस वैल्यू को देखें क्या आंसर हो जाएगा। आंसर मैसेज करने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही सॉल्व कर देता हूँ। ये 3 वैल्यूज ऐड होंगी। आवर लॉजिक शुड बी प्रॉपर क्लियर कि हमें क्या करना है, फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं काउंट करने हैं, क्या करना है, मिनिमल डेसिमल प्लेस। तो कितने हैं यहाँ पर 2। सो इन अवर आंसर फाइनली कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे 2। 10.18। गुड, ठीक है। चले नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट सिनेरियो है मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का। मतलब कि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में हम किस तरीके से चीजों को डिस्कस करते हैं। तो अब आ गया, रूल बदल गया। फिर ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, सेम एग्जांपल एडअप का जो हमने डिस्कस किया हुआ है। अब हमें डिस्कस करना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। देखिए कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट बदल गया है। एग्जैक्ट बदल गया मतलब जब एग्जाम में पूछता है कि आंसर इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स और क्वेश्चन है एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का, तो याद रखना है कि क्या काउंट करना है, डेसिमल प्लेस। लेकिन जब क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का है तो क्या काउंट करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आंसर सुने, द रिजल्ट विल हैव मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स
एज कंपेयर टू द अदर नंबर। जिसके पास मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो हमारा आंसर होगा। हम किधर आ पाते हैं? ठीक है, तो सुनेंगे सब। देखिए, तो अभी मैंने क्या बताया कि यार एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सबको क्लियर होना चाहिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट नहीं करते और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में करते हैं। मतलब देखें, मैंने दिया है 2.3 को मल्टीप्लाई करो 200 से, ठीक है, 2.3 को मल्टीप्लाई करना है 200 से, तो इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 2.3 के पास 2। अच्छा, 200 के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? सिर्फ 1। अब मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 460। तो 460 के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 2। जबकि आइडिया क्या है, जो अभी हमने बताया, आइडिया क्या है? आइडिया है द रिजल्ट विल हैव मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज गिवन बाय द कंपैरेटिव नंबर्स। तो इसमें है 2 और इसमें है 1, तो हमारे आंसर में कितने होने चाहिए? 1 होना चाहिए। इसका मतलब 460 ये इनकरेक्ट आंसर है। अब थॉट कि कुछ लोग सोचेंगे सर 460 है, हमें मिनिमम 1 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो मिनिमम 1 सिग्निफिकेंट फिगर से सर 0 हटा दिया, 6 हटा दिया, सर आंसर 4 हो गया, ये नहीं कर देना। या सर 6 हटाएंगे तो आंसर 5 हो जाएगा, ये नहीं कर देना है। जीरोस कहाँ जाएंगे? तो जीरोस वहां पर रहेंगे। तो जब आप 0 हटाओगे कोई दिक्कत नहीं, बट जब ये 6 को हटाओगे तो बिकॉज ये 5 से बड़ा है इसलिए यहाँ पर एक ऐड होगा, तो आंसर तो 5 आएगा, बट ये 0 नहीं भूल जाना है। मतलब आंसर क्या आएगा? 500 500। सो इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग ये नंबर आएगा 500। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज एक नंबर दिया हुआ है 115.48, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 5। इसको मल्टीप्लाई कराओ 11 से, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 2। तो मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा, अब मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा हुआ है, आप करा लें। मल्टीप्लाई करके जो भी यहाँ पे आंसर आएगा उसमें सिर्फ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? 2। इसका मतलब चलो मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 11 का मल्टीप्लाई करते हैं 8, 88 कैरी 8, 11 का 4, 4 और 8, 4 का 44, 44 8 52, 2 कैरी 5 और 11 का 5 से 55 60, सो 60 का आ गया 0 कैरी 6, 11 का 1 6 7, 11 का 1 एक सेकेंड, 11 का 1 और 1 1 2, सो 1 2 ये आ गया। सो इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये आंसर में बहुत सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जबकि हमारे आंसर में कितने होने चाहिए? 2। इसका मतलब सब हटाने पड़ेंगे। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, हटाते समय इसे लिखेंगे 1, 7 भी हटाना पड़ेगा, लास्ट में 2 ही रखना पड़ेगा। तो ये राउंड ऑफ हुआ 0, ये राउंड ऑफ हुआ 0, ये राउंड ऑफ हुआ 0, 7 राउंड ऑफ हुआ 0, बट 7 जब हटेगा तो 2 को एक इंक्रीज करके जाएगा तो आएगा 3। कुछ लोग इसे लिखेंगे ये, बट अगर पॉइंट लगा दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर होगा विदाउट द पॉइंट, आंसर होगा 1300, बिकॉज दिस नंबर कंटेन्स 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली। तो मुझे लगता है मल्टीप्लिकेशन वाला आप लोग को क्लियर हो गया होगा। किसी को कुछ डाउट है तो पूछें। नहीं सर। नहीं? ओके गुड। चले तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा, और उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते हैं कि क्या क्या चीजें पूछी हुई हैं। डन, ये एग्जांपल सॉल्व करते हैं सब। आंसर करें, मुझे फाइनल आंसर क्या आएगा? द लेंथ ऑफ अ क्यूब इज गिवन बाय दिस क्यूब, फाइंड इट्स वॉल्यूम। चैट बॉक्स में आंसर करें सब। सो बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं करेक्ट, वेरी गुड। नहीं यार, करेक्ट नहीं यार, सब लोग थोड़ा थोड़ा सा ध्यान दें। वॉल्यूम का आंसर क्या होता है? ए क्यूब, मतलब आंसर होगा 1.5 का क्यूब।
चलिए देख लेते हैं, बहुत सारे आंसर्स आ गए, मैं बोल भी नहीं सकता इतने सारे आंसर्स को। मैं डायरेक्टली डिस्कस करता हूँ कि मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मुझे फाइंड करना है उसका सॉल्विंग, क्यूब करना है, ठीक है। तो 1.5 का हम क्यूब कर लेते हैं, तो फाइनल वैल्यू हमारा कितना आता है वो देख लेते हैं। सो 1.5 का क्यूब करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है ये कितना, 3.375। बट अब प्रॉब्लम समझें, 3.375 जबकि हमारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, मिनिमम 2, तो आंसर में भी होने चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कुछ लोगों ने 3.375 से रिमूव करना शुरू किया, 5 हटाएंगे तो 7 क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा, 3.7 बन जाएगा 8, और फिर 8 को भी रिमूव करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.4 बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 5। तो इसका मतलब आंसर 3.4 करेक्ट है सबका। बट कुछ लोगों ने 3.4 मीटर लिखा था, बेटा वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब हो जाएगा। डन। सो वो थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत सारे स्टूडेंट ने 3.3 लिखा था, ऐसे ही 75 को हटा दिया। बेटा राउंड ऑफ इसीलिए सिखाया था, आप लोग को राउंड ऑफ इसीलिए सिखाया था कि आप चीजें थोड़ा सा ध्यान देंगे कि किस तरीके से हम राउंड ऑफ करते हैं। तो अभी जो भी चीजें मैंने दिखाई एक बार मैं रिव्यू कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमें एक नया टॉपिक देखना होगा जिसमें हम एरर एनालिसिस करेंगे। ऑल्दो मैंने फर्स्ट लेक्चर में ब्रीफ किया था कि एक गिवन डेटा से कैसे एरर एनालिसिस करते हैं, बट अब हम एक बहुत ही ब्रॉडर वे में सीखेंगे कि एक प्रॉपर एरर कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं। डन। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर करेक्ट दिया था। अब हम सारी चीजें रिव्यू कर लेते हैं जो आज हमने सीखा है। देखें, आज हमने जो देखा था, आज हमने सीखा था कि किसी भी तरीके से, मतलब डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके हम किस तरीके से, हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके किस तरीके से हम एक फॉर्मूला एस्टेब्लिश कर सकते हैं। डन। अच्छा, इसका एक मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ट्राई करें, जिनको ये समझ में आ गया है कि कैसे ट्राई करना है। पैटर्न सेम है, पैटर्न बिल्कुल भी अभी भी वही है, बस थोड़ा सा डायमेंशन लिखने का तरीका बदल गया है। मतलब सोचो, क्वेश्चन सब लोग सुनेंगे, मैं एक रैंडम सा एग्जांपल दे रहा हूँ इन विच हमने जो फंडामेंटल क्वांटिटीज एज्यूम की है ना, वो है फोर्स। मतलब एक यूनिट सिस्टम है जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने किसको मान लिया है, फोर्स को मान लिया है, और टाइम को मान लिया है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और टाइम को मान लिया है, और स्पीड को मान लिया है। या टाइम कट करते हैं, टाइम थोड़ा सा कट करते हैं, टाइम क्योंकि फंडामेंटल ऑलरेडी है। हमने फोर्स को माना है, हमने स्पीड को माना है, और हमने एक्सेलरेशन को माना है। ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो आप बताओ काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन हमें पता है कि वैल्यू क्या होती है, ml स्क्वायर t माइनस 2, ये किसी भी एनर्जी की डायमेंशन होती है। बट क्वेश्चन में दिया है कि नाउ m इज नॉट अवर फंडामेंटल डायमेंशन, l इज नॉट अवर फंडामेंटल डायमेंशन, t इज नॉट अवर फंडामेंटल डायमेंशन, विच आर द फंडामेंटल डायमेंशन, f, s मतलब स्पीड को v लिख लेते हैं, v, एक्सेलरेशन को a। तो नाउ आंसर द योर डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ f, v and a। तो स्टूडेंट्स ट्राई करें, हु कैन आंसर इन टर्म्स ऑफ f, v and a। FVA -1। FVA -1, वेरी गुड यार। थोड़ा गलत है, थोड़ा भी गलत है। देखिए, ये सॉल्व करने के दो तरीके हैं। लेट्स सी किसी के आंसर आ गए या नहीं। नॉट करेक्ट।
आर्या नॉट करेक्ट, अनीश नॉट करेक्ट। चलो मैं थोड़ा सा आपको कॉमन लॉजिक बताता हूँ। हम कुछ लॉजिक लगा के फाइंड करते हैं। कैसे बेटा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सोचने का ट्राई करते हैं हम। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ एम वी स्क्वायर। तो प्रॉब्लम किसकी है? वी तो फंडामेंटल है ना, उसे फिर अलग से लेंथ और टाइम लिखने की क्या जरूरत है? हमें सिर्फ क्या ढूंढना है? एम। एम इज नॉट फंडामेंटल। तो हम बता सकते हैं ना एफ इज इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू ए। तो एम की डायमेंशन क्या आ जाएगी? एफ बाई ए। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या आ जाएगी? एफ बाई ए, विच मीन्स ए टू द पावर -1 एंड वी स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एफ a-1 v पावर 2। ये डायमेंशन हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी की इन टर्म्स ऑफ एनी रैंडम सिस्टम। लेट्स से, क्योंकि एग्जांपल जब आपको करेगा तो कुछ भी दे सकता है ना। सो कार्तिक का करेक्ट आंसर था, ओनली कार्तिक ने करेक्ट आंसर दिया था, आर्या ने थोड़ा टाइपिंग गलत लिख दिया, यशराज करेक्ट आंसर था। डन। तो दो लोगों ने आंसर करेक्ट किया। तो ये एक लॉजिक वाइज था। अब हम इसका ब्रॉडर पिक्चर देखते हैं कि एग्जाम में अगर आपको ये लॉजिक नहीं आया, लेट से आपको फॉर्मूला याद नहीं आया, तो कैसे करना होता है। तो हम इस डायमेंशनल एनालिसिस का लॉजिक यूज करते हैं। क्या लॉजिक है ये? हम एक तरफ लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी का ओल्ड फॉर्मूला, और एक तरफ लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है? एफ पर, वी पर और ए पर। क्लियर? अब f टू दी पावर मानो a, v टू दी पावर मानो b और a टू दी पावर मानो c, सबकी डायमेंशन लिख के a b c की वैल्यू सॉल्व कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ f v a क्या होगा। तो मुझे लगता है सबको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर मैंने अपना यूनिट सिस्टम बदल दिया तो आपको इस तरीके से फाइंड करना है कंपेयर करके कि f v a इन सब की पावर क्या होगी। वही हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का पार्ट होगा। ठीक है, चले। तो आई गेस ये वाला पार्ट सबको क्लियर होगा। और इसका एक एक्सटेंडेड यूज जो मैंने आज बताया, वो देखो सारी चीजें नोट्स में नहीं होती हैं, काफी सारी चीजें क्लासरूम में डिस्कस होती हैं, इसलिए क्लासरूम में अटेंटिव रहना तो इम्पोर्टेंट है ही। तो इसलिए आपको ये चीज तो थोड़ा सा ध्यान देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हमने इस पे बेस्ड 2 एग्जांपल्स देखे थे। फिर हमने यूनिट सिस्टम देखा था कि वेरियस टाइप ऑफ यूनिट सिस्टम कैसे हो सकते हैं और उनके प्रीफिक्स क्या क्या होंगे, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, और उनका कन्वर्जन। आज जो हमने काफी चीजें जो सीखी हैं, उनमें से एक पॉइंट था ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे लिखना है। क्योंकि कई बार आप एग्जाम पूरा सॉल्व करते हो बट आंसर पूछ लेता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ योर आंसर, तो इसलिए आपको उसके लिए भी रेडी रहना है। फिर नंबर 2, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बाद हमने राउंडिंग ऑफ सीखा, क्योंकि हमने बताया कि राउंडिंग ऑफ की जरूरत हमें पड़ती है कहाँ पर? जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्मेट में काम करते हैं तब हमें राउंड ऑफ की जरूरत पड़ती है काफी। फिर राउंड ऑफ के बाद हमने सीखा कि 5 का राउंड ऑफ कैसे करते हैं, वो इंपॉर्टेंट सेक्शन था। फिर हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के 6 रूल्स देखे थे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे लिखना है, वो सारे 6 रूल्स याद रखने हैं। फिर हमने बात की थी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसे अप्लाई करना है। तो थॉट क्या बताया था कि सिग्निफिकेंट फिगर देखना ही नहीं है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या देखना है कि वो जो पॉइंट है, डेसिमल है, उसके बाद मिनिमम कितने प्लेसेस खाली हैं। तो प्लेसेस के बारे में बात होती है। फिर हमने डिस्कस किया कि जब मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात आती है, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड की, तो फिर हम आंसर में डेसिमल प्लेस नहीं फोकस करते, तब हम क्या करते हैं? मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फोकस करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे किस वैल्यू पे, किस चीज पे सिग्निफिकेंट नंबर्स जो है वो मिनिमम है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम मल्टीप्लाई करके उसको कन्वर्ट करते हैं। तो हमने आज यहाँ तक डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हमें एरर के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस करती हैं। तो एरर के बारे में मैंने अपने वेरी फर्स्ट लेक्चर में एरर के बारे में चीजें थोड़ी सी बताई थी। मैं फिर से सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, जिन्होंने लेक्चर अटेंड नहीं किया, मेरा वो लेक्चर नंबर 1 एक बार रिव्यू कर ले। तो बेसिक्स ऑफ एरर मैंने वहां पे डिस्कस किया था, ऑल्दो मैं नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा एरर्स के बारे में, बट इट्स बेटर कि आप लोग पहले से ही रीड करके रखें। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। टिल नाउ किसी को कुछ डाउट है तो बताएं। टिल नाउ किसी को कुछ डाउट है तो बताएं, अदरवाइज आई विल क्लोज द सेशन फॉर टुडे। कल है लेक्चर? क्या कल है क्या?
आपको टाइम शेड्यूल मिल जाएगा ग्रुप में, कल किन सब्जेक्ट्स का लेक्चर रहेगा, ठीक है। अल्टरनेट रहेगा, इधर कल या फिर परसों फिजिक्स का, ठीक है। तो देखते हैं कल अगर लेक्चर रहता है तो इट्स बेटर कि आप पहले एक बार, जिन लोगों ने रिवाइज नहीं किया वो एक बार रिवाइज कर लें, ठीक है। ओके, तो आज के लिए लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। गुड बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर। बाय बाय सर। सर।